एक्चुअली क्या होता है कि जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप having one sigma, single bond is sigma and double bond is having one sigma 1 pi. There are 3 sigma bonds. It means there are 3 sigma bonds. Like this is your sigma, this is your sigma and this is your sigma, and 1 pi bond and the p orbital of p orbital of carbon and p orbital of oxygen. Okay, and there are 2 non-bonding electrons are there. I am giving you all information. These are the 2 non-bonding electrons are there, and this is having carbon having p orbital and oxygen having p orbital, and both are partial overlapped to each other and making pi bond. It means the charge density or electron density. This is your sigma, ये आपका dash, this is your sigma and this is your sigma. This one is your sigma, and the charge density is above the plane and charge density is below the plane. In this way, charge density is above the plane and charge density is below the plane, and this is the oxygen having non-bonding electrons. So this is basically pi bond. ये जो pi bond का manufacturing है, pi bond का जो development है, वो इस तरीके से होता है. Obviously we know very well oxygen having 2 lone pairs. These are the non-bonding electron pair. In this way the hybridization is basically sp2. Hybridization बेटा sp2 हो जाता है, और you know very well this is a trigonal planar geometry. This is a trigonal planar geometry here. This is trigonal planar geometry, trigonal planar geometry, जो कि sp2 hybridization में मिलती है. And the bond angle is typically bond angle is 120 डिग्री, और यहाँ पर बिल्कुल 120 डिग्री आपको मिलता है. तो इसका स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग एक बार और भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. let's do some more details about this structure. एक्चुअली इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये सिग्मा पाई और ये सब चीज़ें आपको समझ में आई गई, बट ये जो हाई पोलैरिटी है इस कार्बन और ऑक्सीजन की, there are 2 reasons. One is having non-bonding electrons and very much difference of carbon and oxygen electron negativity. There is a high polarity between the bond of carbon and oxygen. Because the electronegativity difference and the movement of double bonds towards highly electronegative element in presence of any nucleophile or any group, in presence of any nucleophile or any group, and this becomes turned in this way and convert into minus and plus. So this carbon center becomes an electrophile, electrophilic center. इस तरीके से यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, and this oxygen center becomes a nucleophilic center, becomes a nucleophilic center. That's why this is called as ambidentophile. Ambidentophile means work as an electrophile, work as a nucleophile in different centers. Ambident you can say, regent, ambident regent you can say. ये दोनों की तरह काम करता है. यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. इट मीन्स ये आपका ये जो सेंटर है, ये जो ऑक्सीजन है, वो माइनस वर्क एज ए ल्यूज बेस, एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. मीन्स K प्लस C प्लस वर्क एज ए, जो ये सेंटर है C का प्लस का सेंटर है, दैट इज वर्क एज ए ल्यूज एसिड. तो ये आपका ल्यूज एसिड की तरह वर्क करेगा. This work as a Lewis acid. This is a nucleophilic center and this is a electrophilic center. और इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा. दोनों ही तरह की चीज़ें. एक्चुअली यहाँ पर एक जैसे आप बात करते हो ना, आप बात करते हो यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट,
आपको बताऊं, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली देख रहे हैं आप, ये ऐसे, इसका मतलब क्या होता है पता है? व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है ये ऐसे और ऐसे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तब ऐसा हो गया, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला गया तब वो ऐसा हो गया। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया तो उसकी मौजूदगी में ये ऐसे टर्न हो गया एंड इट बिकम्स लाइक दिस, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल चला गया तो उसकी मौजूदगी में ये ऐसे हो गया एंड इट बिकम्स लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स क्या हुआ कि जब तक फॉर द टाइम बीइंग whenever the nucleophile is present, it affects and changes the bond polarity into plus minus. When the nucleophile is removed, it again come into the prior position, prior situation, right? तो जो prior situation है, prior position है, उसको फिर से cover कर लेता है। And this kind of effect of any reagent, the effect due to any reagent, presence of any reagent, that is called as electromeric effect. The effect due to presence of reagent, वैसे नहीं है वो, लेकिन वो किसी reagent की presence में है, reagent called electromeric effect. Obviously जब reagent होगा तब वो effect होगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा. It means electromeric effect is a temporary effect, and it is a टेम्परेरी इफेक्ट, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा कोई रिएजेंट रहे। तो यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से होती है, एंड दैट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी इफेक्ट, और वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है बेटा। सो बेसिकली दिस इफेक्ट इज द इफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, और ये एक आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट एंड दिस इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, और ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ओके, now let us discuss about the preparation of aldehydes and ketones. अब उनके स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इनमें से मैक्सिमम रिएक्शंस तो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हो, पहले ही बना चुके हो, आप सब की सब तो पहले ही बना चुके हो भैया, जितनी भी सारी रिएक्शंस हैं। अगर हम शुरू करें कि भाई अल्कोहल से हम कैसे बना, सबसे पहले देखिए हमारा तो तरीका एक ही होता है कि हम आपको बताएं कि भाई एल्केन से कैसे बनाएंगे, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, एल्काइन से कैसे बनाएंगे। तो एल्केन का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी चलिए हमने इससे पहले जस्ट अल्कोहल डिस्कस किया है, तो अल्कोहल से हम सारी बातें आपको बता दें। अल्कोहल में दो बातें हमने की थी, वन इज़ ऑक्सीडेशन एंड अदर वन इज़ डीहाइड्रोजनेशन। वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही था, यानी ऑक्सीडेशन भी दो तरह के होते हैं ना। देखिए ये भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन तो ये भी है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसे ऑक्सीडेशन बोला गया, इसे ऐसे बोला गया न, ये मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। बेसिकली ऑक्सीडेशन जब आप करा रहे हो किसी की प्रेजेंस में, ऐसे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा रहे हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल आपका, यू नो वेरी वेल, 1 डिग्री अल्कोहल आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब आप करा रहे थे, आप प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट ले रहे थे, आप कैमेनोफोर ले रहे थे, तो वो आपको एसिड दे रहा था, नहीं वो एल्डिहाइड दे रहा था ना, वो एल्डिहाइड दे रहा था, और नॉर्मली एल्डिहाइड आपका एसिड में चला जा रहा था, लेकिन पीसीसी आपका उसे वहीं पर रोक देता है। ये पूरा डिस्कशन हमने अल्कोहल में किया था। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन मिल रहा था, CrO3 का यूज़ आप कर सकते थे, है ना, CrO3 का यूज़ कर सकते थे इसमें, या आप इसका यूज़ कर सकते थे, तो आपको कीटोन मिल रहा था। 2 डिग्री अल्कोहल के उससे आपको कीटोन मिल रहा था।
और 3 डिग्री अल्कोहल से यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है डिहाइड्रोजनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोजनेशन? देखिए, ऑक्सीडेशन के 2 मीनिंग्स होते हैं, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या था? डिहाइड्रोजनेशन का मतलब था हाइड्रोजन का निकलना। लाइक अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जैसे सिल्वर या कॉपर, हीटेड सिल्वर का यूज़ करते थे, एल्युमिनियम वेपर्स, अल्कोहल वेपर्स को उसके ऊपर से गुजारते थे, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में चले जाते थे।